إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ تزکیہ نفس کی کلاسیں ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر جو نفس کے تزکیے کے تعلق سے مختلف اہم باتیں مذکور ہیں، ذکر کی گئی ہیں، وہی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 26 کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے آیت نمبر 26، سورہ یوسف کی آیت نمبر 26۔ آپ کے سامنے مصحف رہے تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی رہے گی، اس لیے میں آیت نمبر کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ آیت نمبر بول دیتا ہوں۔ 26 نمبر کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال ہی راودتنی عن نفسی، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ یہ جو ہے 3 آیتیں آج کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ان 3 آیتوں کی تفسیر پیش ہو جائے۔ پہلی آیت ہے آج کے درس کی آیت نمبر 26، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قال ہی راودتنی، پہلا پوائنٹ، قال ہی راودتنی عن نفسی، قال ہی راودتنی عن نفسی، یہاں تک یہ سینٹنس پورا ہو جاتا ہے۔ اور اسی آیت میں اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس پورے معاملے کے فیصلے سے وہ بات تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کے پہلی والی آیت میں یہ بات تھی کہ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دونوں دروازے کی طرف لپ کے، اور دروازے کی طرف پہلے پہنچنے کی دوڑ شروع ہوئی۔ یوسف علیہ السلام پہلے پہنچے اور پیچھے سے عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا تو قمیص جو ہے اور زور سے کھینچا تو قمیص پھٹ گئی، اور جب دروازے سے جیسے ہی باہر نکلے، دروازہ کھلا باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کی بیوی کا شوہر، سامنے عزیز مصر موجود تھا، اور عورت نے فوری طور پر اپنا رنگ بدلتے ہوئے یہ کہا کہ
ऐसे शख्स की सजा क्या हो सकती है जिसने आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा किया हो। उसकी सजा तो यही हो सकती है ना कि उसे कैद किया जाए या दर्दनाक। औरत ने अपनी बात फौरन कह दी, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत तो पूरे तरीके से सारा मामला मेरे जो है खिलाफ बयान कर रही है और पूरे तौर पर ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है इस पूरे मामले में, हालांकि सारी जो है सारा मकरो फरेब सारी चालबाजियां उसकी तरफ से हुई थी, और लेकिन ये जो है मुझे फंसा रही है यहाँ पर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी खामोश नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी सफाई में ये बात कही। यही जो है पहला आज के दर्स का पहला टुकड़ा है, ये पहला पॉइंट है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई में, अपनी जो है तहारत और पाकीज़गी और अपनी बेगुनाही के लिए सिर्फ एक सेंटेंस कहा, कुछ नहीं कहा। ये होती है सच्चे की जबान, और झूठे की जबान ये होती है कि आदमी जो है बहुत लंबी चौड़ी हाँकना शुरू कर देता है। वो जो है अपनी बेगुनाही और अपने हक होने को साबित करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी जो है बातें पेश करना शुरू करता है, वो झूठे की अलामत होती है। वो कस्में खाएगा, बड़ी ताकीद के साथ बात करेगा, बार बार आंखों में आंसू, सामने वाले के जज्बात को उभारना और उसके इमोशन को जो है बरंगेफ्त करना, उसको उभारना, ताकि इन सब चीजों के जरिए से अपनी झूठी बात को सच साबित किया जा सके। ये हमेशा कौन करता है? झूठा करता है। जो सच्चा होता है वो तो बिल्कुल सादगी के साथ अपनी बात कह देता है, क्योंकि उसका दिल उसके साथ होता है, जबकि झूठे आदमी का दिल साथ में नहीं होता है। दिल से तो ये आवाज आती रहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा तो नहीं हुआ है, बात तो ये थी। तो अंदर से आवाज कुछ और होती है, जमीर की आवाज कुछ और होती है, दिल की आवाज कुछ और होती है, और जबान की आवाज कुछ और होती है। तो वहां इंसान को अपनी जबान से बड़ी जो है बहुत ही ताकीद के साथ और बहुत ही पुरजोर अल्फाज में और बहुत ही जो है कसमें वगैरह खा करके और इमोशन को पूरे तरीके से जाहिर करते हुए बातें जो है करना पड़ता है, कहना पड़ता है। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, बस उतना जो है नोट कीजिए आप। काल हिया रावदतनी अन नफ्सी, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, काला कहा, हिया रावदतनी अन नफ्सी, इसने इसने खुद मुझे फुसलाया था, यही जो है मुझे फुसला रही थी, यही मुझे बहका रही थी, इसी ने मुझे बहकाया था, इसी ने मुझे वर्गलाया था। ये सारी हरकत इस औरत की थी, यही मुझे इस कमरे तक लेकर के आई थी, और यही चाह रही थी कि मेरे साथ बदकारी जो है करे, या मुझे अपने साथ बदकारी के लिए आमादा करे, तैयार करे। ये सारा किया कराया इसी औरत का था। लेकिन जिस जो है पुरजोर अंदाज से उस खातून ने अपनी बात कही थी, ये बिल्कुल एक सादा सा सिंपल सा सेंटेंस है अरबी जबान के लिहाज से। आप देखिए जो है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। काला, उन्होंने कहा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हिया रावदतनी, हिया प्रोनाउन ये औरत की तरफ, उसी औरत की तरफ, अजीज मिस्र की बीवी की तरफ, यानी शी, रावदतनी, रावदतनी अन नफ्सी, मुझे मेरे नफ्स से बहकाने का काम यही औरत कर रही थी। यही औरत चाह रही थी कि हम इसके साथ ये बुराई करें। ये औरत की जो है तरीके से औरत का ही कारनामा थी, मुझे जो है मजबूर कर रही थी, मैं तो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये जो है कैफियत सामने आई है, वो सारी बातें भी नहीं कही गई हैं इसमें जो पूरे तरीके से हुई। बस
इतना सा कह करके छोड़ दिया कि भाई इन्होंने ही यही मुझे फुसला रही थी, मेरी तरफ से कोई इसमें कोई गलती जो है नहीं हुई है, मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, मेरी तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, मेरी तरफ से कोई इकदाम नहीं हुआ है, ये औरत ही मुझे जो है इस गुनाह की तरफ बुला रही थी और यही इस गुनाह की दावत दे रही। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी। रावदा किस माने में होता है ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उसके लिए आप जो है इसके पहले जो आयतें गुजर चुकी हैं और उसका जो दर्स गुजर चुका है उसके बारे में जो है आप जो पुराना दर्स सुन लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इस आयत के बारे में। वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, तो उस मौके पर मैंने रावदा के ताल्लुक से अरबी जबान में ये लफ्ज किस माने में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है वहां पे मैंने उसकी वजाहत कर दी है। तो वही लफ्ज यहाँ दोबारा है, क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी, इसलिए हम ज्यादा इसमें तफसील की तरफ नहीं जाएंगे। कहा इन्होंने थोड़ी सी हिय को जो पहले जिक्र किया गया है, रावदत में भी वो जमीर होती है, लेकिन जब हिय पहले जिक्र किया गया तो थोड़ी सी जो है इस जुमले में इस सेंटेंस में ताकीद होती है कि इन्होंने ही मुझे बहलाया था, फुसलाया था, ये हरकत इन्हीं की तरफ से हुई थी। वह शहीद शाहिद, अब यहाँ तक तो दोनों की बातें हो गई। उस औरत ने पूरा जो है मामला, पूरा जो है जो उसकी तरफ से मामला हुआ, उसने इनको ही दोषी ठहरा दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और सारा मामला इनके ऊपर डाल दिया अपने शौहर के सामने। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सादगी के साथ एक बात कह दी कि नहीं, ये मुझे फुसला रही थी। अब दोनों की तरफ से बात आ गई। अब दोनों की तरफ से बात आ जाने के बाद क्या चीज होती है, वह शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, अब ये फैसले का मामला है। अब तो यहाँ दो मौजूद हैं, एक जो है एक कैफियत में दोनों जो है मर्द और औरत को पकड़ा गया है, एक खास जो है हालत के तहत पकड़ा गया है, दोनों जो है सामने आ गए हैं। गलती किसकी है? औरत जो है मर्द के ऊपर डाल रही है बात, और मर्द ने कहा कि नहीं ये औरत की गलती थी। ये तो दोनों की तरफ से बयान हो गया। और जब किसी चीज का फैसला किया जाता है तो उसके बारे में ये बात नोट कर लीजिए, ये शरीयत का उसूल भी है, और ये बात आप जो है नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। आप में से किसी का शायद जो है वो म्यूट नहीं है, अनम्यूट है, वो म्यूट कर लीजिए, आवाज़ आ रही है बार बार, तो आप कोई एक जो है म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लें जी। मैं आपसे ये कह रहा था कि दोनों तरफ की बात हो गई। यहाँ तीन अहम मसाइल हैं शरीयत के, उसे आपको नोट करना है। तीन अहम मसाइल, बाज़ मर्तबा हम लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, सोचते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, नहीं। तीन अहम मसाइल। पहला मसला ये है कि जहाँ आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग रहा हो तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना दिफा करें, डिफेंस करें। यानी आप कहें कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, अगर वाकई माने में वो इल्ज़ाम है और ऐसी कुछ भी आपसे जुर्म नहीं हुआ है, गलती वो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ खामोशी इख्तियार कर लें तो ये गलत होता है। ये सोच करके कि नहीं वो तो सामने वाला समझता है कि गलती मैं नहीं कर सकता, गलती वही कर सकती है, तो खामोशी इख्तियार कर लेना ऐसे मौके पर जहां बोलना जरूरी होता है, ये बहुत बड़ी गलती है। और इस तरह की खामोशियां घरों के माहौल में जहर घोलती है। ये पहला मसला है। हमने आपसे कहा ये तज़किये की क्लास है, तो तज़किये में, तज़किये नफ्स में ये चीज भी नोट कर लीजिएगा, ये इस्लाम का मसला है, शरीयत का मसला है। जहां बोलना जरूरी होता है उस मौके पर अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इसे तस्लीम कर रहे हैं।
تو وہاں خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی. آپ کو ضروری ہے کہ اپنا دفاع کریں، اپنا ڈیفینس کریں، بتائیں کہ نہیں جو کہا جا رہا ہے غلط کہا جا رہا ہے، صحیح بات یہ ہے. اس طرح کی غلط باتیں سن کر کے خاموشی اختیار کر لینا، یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے، گویا کہ آپ اس سے تسلیم کر رہے. یہ ایک پہلی بات تھی. دوسری بات یہ جو اہم چیز وہ یہ کہ کوئی بھی شخص دنیا میں، کوئی بھی شخص جب اس کے سامنے کوئی بات آئے، کوئی شکایت آئے کسی کی طرف سے بھی، تو یہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کہ جس کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے اس کی بات بھی سن لے، اور اس کی بات سننے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کوئی اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے دوسرے کی بات سننے بغیر. میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے واضح کر دوں کہ جیسے جو ہے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، تو شوہر سے آپ کا ملا جلا ہے، تو شوہر نے آپ کے سامنے بات رکھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے. یا شوہر کے گھر والے اس کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری بہو ایسی ہے، ہماری بہو ایسی ہے. تو فوری طور پر ہمیں اس عورت کے تعلق سے اپنے ذہن میں کوئی غلط بات نہیں بیٹھا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہوگا. نہیں، جب تک ہم دوسرے سے بھی بات نہ سن لیں، یعنی جن کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے پہلے ان سے بھی تو سن لیجئے کہ حقیقت کیا ہے. جب تک دونوں طرف سے بات نہ سنی جائے تب تک کسی طرح کی کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے. صرف ایک طرف کی بات سن کر کے رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. کبھی الٹا بھی ہوتا ہے معاملہ، یعنی دونوں طرف سے یہ چیز ہوتی ہے. کبھی بیوی جو ہے شکایت کرتی ہے شوہر کے تعلق سے، تو کیا اس کی شکایت صحیح ہے، اس کی بات صحیح ہے، یہ جاننے کے لیے شوہر سے پوچھنا ضروری ہے. اور جب تک اس سے نہ پوچھ لیں تب تک کوئی رائے نہ قائم کریں، کہنے دیجیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ برے لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں. یہ ان کی پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو. دیکھو یہ پورے واقعے میں کیا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ہی پہلے جو ہے کہنا شروع، حالانکہ غلطی اس کی ہے لیکن وہی کہنا شروع کرتی ہے، وہی جو ہے اپنا دفاع کرنا شروع کرتی ہے، الزام پہ الزام لگانا شروع کرتی ہے. یہ شکایت کرنے والے لوگ یاد رکھ لیجئے کہ ہمیشہ غلطی انہی کی ہوتی ہے. اس لیے جب تک سامنے والے سے بھی بات نہ سن لے تب تک اپنے ذہن میں ان کے تعلق سے کوئی رائے قائم نہ کریں. یہ شریعت کا اصول ہے. ایک بات صرف کہی گئی ہے، جب تک جو ہے اس کو کلیئر نہ کر لیں آپ تب تک اس پہ یقین نہ کر لیں، اس کو مان نہ لیں. اور جو ہے اب کلیئر کرنے کے لیے کیا ہے کہ جس کے بارے میں کہی گئی ہے اس سے پوچھ لیجیے. ایک اور معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں، کہ لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کی جاتی ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے اور آپ حق جاننا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی، جس نے آپ کے سامنے برائی کیا اس کو بیٹھائیے، اور جس کے بارے میں برائی ہو رہی تھی اس کو بھی بلا لیجئے اور کہیے کہ آپ ذرا ان کے سامنے کہہ دیجئے آپ یہ بات. یاد رکھیے یہ غیبت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ہماری غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم ایک طرف سے بات سننے کے بعد اپنے ذہن میں ایک رائے قائم کر دیتے، کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر دیتے. جب تک دوسری طرف سے بھی بات نہ سن لے تب تک کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، کوئی اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے. یہ شریعت کا اصول ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے بات کہی. اب عزیز مصر نے اپنی بیوی کی بات سن کر کے یوسف علیہ السلام کے خلاف کارروائی شروع کر لیا. ایسا نہیں، بلکہ یوسف کو بھی کہنے کا موقع ہے، آپ بھی اپنی بات رکھیے. یہ جو ہے چیز بڑی اہم چیز ہوتی ہے یہ، اور اس سے سماج کی بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور گھر کے معاملات بہت سارے سدھر سکتے ہیں اگر ہم یہ اسلامی اصول اپنا لیں کہ صرف سن کر کے کوئی بات
किसी एक तरफ से कोई बात सुन करके हमें कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए, कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए जब तक कि हम दूसरी तरफ से भी बात न सुने। तीसरी अहम चीज ये है कि जब दोनों तरफ से बात आ गई, ये कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, इनका ये कहना है और इनका कहना उसके बिल्कुल खिलाफ है, दोनों की बातें बिल्कुल अलग हैं, तो हमें अपनी तरफ से कोई राय नहीं कायम कर लेना चाहिए कि हाँ ये सही ये गलत। अब यहाँ जरूरी है कि फैसला करने की कुव्वत आनी चाहिए, ताकत आनी चाहिए कि दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास जब लोगों की शिकायतें आती हैं, कभी बीवी जो है, चूंकि ऐसा अब समाज में ऐसा कुछ ऐसे मसाइल होते रहते हैं, तो औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं शिकायतें लेकर के, घर के अपने हालात को लेकर के, कभी भाई बहनों की शिकायतें भी आती है, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से चीजें आती हैं। तो कभी शौहर की तरफ से चीज आती है या बीवी की तरफ से चीज आती है, तो मेरा तरीका इसमें यही है कि जब तक दोनों तरफ से न सुन लो तब तक कोई बात नहीं करनी। ये जरूरी है और ये जानना जरूरी है। और अगर सिर्फ एक तरफ से बात कही जा रही है और दूसरी तरफ से कोई राब्ता नहीं हो रहा है, तो हम साफ मना करते हैं कि हम आपका ये फैमिली मैटर है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, नहीं हो सकते। आप खुद जो है अपने फैमिली मेंबरों को इकट्ठा करके उस मामले को सुलझा लीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। अगर आप मेरे सामने जो है इसे हल करना चाहते, आप मुझसे इसे हल कराना चाहते, तो फिर दोनों को साथ में आना पड़ेगा और दोनों में से हर एक की क्या शिकायत है दूसरे से, वो दोनों को सामने बैठा करके हम सुनना चाहेंगे, ताकि सही माने में हक क्या है वो चीज वाज़ेह हो सके। ये हमारा तरीका, ये इस्लामी तरीका। और जहां ये कैफियत नहीं होती है, बाज़ मरतबा औरतें कहती है हमारे शौहर को नहीं मालूम होना चाहिए कि हमने आपको फोन किया और ये बातें कही हैं, यानी घर का माहौल और खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये है कि जब शौहर को नहीं मालूम होना है, तो सिर्फ हम आपकी बातों पर कैसे एतमाद करके ये समझ ले कि हाँ शौहर की गलतियां, या शौहर ये चाहे कि बीवी को नहीं मालूम होना चाहिए। ऐसा भी बहुत होता है मामला कि बाद लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि जरा मेरी बीवी को नसीहत कर दीजिए, और ये जो है बड़े इस तरह के मसाइल, तो हम फौरन नसीहत करने नहीं चले जाते हैं, तो हम बीवी की तरफ से भी सुनना चाहेंगे कि उनको क्या शिकायत है। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा जो शिकायत करने वाले लोग होते हैं, गलतियां उन्हीं की होती है, और ऐसे ही लोग, उनकी जबानों से शिकायत के अल्फाज निकलते हैं। अच्छे लोग तो सब्र करते हैं, अगर वाकई माने में कोई इस तरह की चीज रहती भी है ना, तो वो सब्र कर जाते हैं, उनकी जबानों से शिकायतें नहीं निकलती रहती हैं। नहीं नहीं, तो ये शिकायत करने वाला हमेशा क्या होता है, खुद गलत होता है और सामने वाले को गलत जो है जाहिर करने के लिए लोगों के सामने जाकर के बड़े इमोशनल अंदाज में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं, उसके साथ जो है चीजों को पेश करना चाहते हैं। आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाएंगे, रोना पीटना बहुत जल्दी हो जाएगा, ये सब जो है उनके सही ना होने की अलामत होती है। ये सब चीजें जानने की हैं, ये सब चीजें समाज में जानने की होती हैं, ये साइकोलॉजी से ताल्लुक है इन सब चीजों का, इंसान की जो साइकोलॉजी है उससे इसका ताल्लुक है। तो ये तीन बातें मैंने कहा आपसे। तो अब तीसरी बात ये क्या थी कि अब फैसला, जब दोनों तरफ से बात सुन लिया और दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो अलग अलग कही जा रही है, तो अब दोनों के दरमियान फैसला करना है कि हक क्या है। तो अब वो हक का फैसला देखिए, इसी आयत में आगे जिक्र है, वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा। अब सवाल ये था कि यूसुफ तो कह रहे हैं कि इस औरत ने मुझे वरगलाया है, फुसलाया है, और औरत कह रही है कि इसने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। तो दोनों की बातें बिल्कुल अलग हैं, तो दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, अब फैसला होना है। दूध का दूध और पानी का पानी करना है यहाँ पर। तो अब जिसके पास फैसले की ताकत है वो आएगा और फैसला करेगा।
दोनों तरफ की बात सुन करके फैसला करेगा। अब यहाँ फैसला किसने किया है? उसी औरत की रिश्तेदारों में से एक ने फैसला किया। और इसके अंदर भी 3 अहम पॉइंट है जो कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि वह शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा। ये शहीदा के माने यहाँ पर क़ज़ा के हैं, क़ज़ा, और शाहिदुन के माने कादी के हैं। वैसे तो शहीदा के माने गवाही देने के, और शाहिद विटनेस को कहते हैं, ऐसा भी है अरबी ज़बान में। देखने का माना भी इसके अंदर होता है और गवाही देने का माना भी इसके अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर गवाही देने का नहीं है, क्योंकि ये वहां थे थोड़ी ना, कोई इनमें से कोई वहां थे नहीं, औरत के रिश्तेदारों में से भी कोई वहां नहीं था जिसने देखा और उसने जो है आकर के विटनेस बन करके इस मामले में गवाही दिया हो और अपनी विटनेस जो है दर्ज कराई हो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये शहीदा किसके माना में है? क़ज़ा के माने में। ये सब चीजें जो है अरबिक लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में जो इस्तेमाल होता है, उसका जिस जगह पे लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है उससे ये बात समझी जाती है। इसीलिए जिन लोगों ने इस तरह के जो है जगह पे गवाही देने का माना किया उर्दू में, उन्होंने गलत किया, क्योंकि यहाँ गवाही देने के माना में नहीं है, विटनेस का माना नहीं है यहाँ पर इसका। या किसी और लैंग्वेज में भी जो है जो तर्जमा किया जाए इसका, तो वो सही नहीं माना जाता है। यहाँ गवाही देने का नहीं, यहाँ फैसला करने का मामला है। तो उसी औरत के रिश्तेदारों में से एक शख्स ने फैसला किया, फैसला किया। ये पहला पॉइंट था कि शहीदा यहाँ पर फैसला करने के माना में है। वहां कोई विटनेस था ही नहीं, ये तो तन्हाई का ना मामला है, अकेले का ना मामला है। ये बदकारी तो अकेले में ना करना चाह रहे थे। ये दोनों जब दरवाजे की तरफ लपके हैं तो सामने से अजीज मिस्र आए और इनकी मुलाकात उनके सामने जो उनसे हुई है। बात तो सिर्फ ये है, वहां पहले से कोई विटनेस जो है ही नहीं कि वो गवाही देगा। और विटनेस तो वही होता है जो वहां मौजूद होता है। तो क्या है ये? फैसला करने का माना है। ये पहली बात जो 3 पॉइंट आपसे कहा था। दूसरा पॉइंट ये है कि कुरान कहता है शाहिदुन व शहीद शाहिदुन, शाहिदुन ये कादिन के माना, फैसला करने वाला, लेकिन ये तनवीन के साथ बयान किया गया यहाँ पर, शाहिदुन। अशाहिदु नहीं कहा गया, वह शहीद शाहिदु मिन अहले, यानी अशाहिदु नहीं कहा गया बल्कि शाहिदुन कहा गया है तनवीन के साथ। ये तनवीन वो उस जो है फैसला करने वाले की अजमत को बताती है। बड़ा अजीम शख्स था ये, बड़ी समझबूझ का मालिक था, फैसले की कुव्वत उसके पास थी, फैसला करने की समझ उसके पास थी। ये सारा माना इसी तनवीन के अंदर मौजूद है जो शाहिदुल में है। शाहिदुल ये जो 2 पेश आप कहते हैं उर्दू में, उसी को अरबी में तनवीन कहा जाता है। 2 पेश 2 जबर 2 जेर, इसको अरबी में तनवीन कहा जाता है। तो इस तनवीन में मेरे भाइयों ये माना पाया जाता है जो किसी भी तर्जमे में आपको नजर नहीं आएंगी। ये चीजें ये अरबी बलागत से ताल्लुक रखती है। अरबी बलागत के लिहाज से ये तनवीन तफखीम के लिए, ताजीम के लिए है। यानी एक अजीम शख्स ने, कोई मामूली चलता फिरता आदमी फैसला सुनाए तो कौन मानता है? कोई मानेगा नहीं। फैसला करने वाला कैसा होना चाहिए? जिसके पास फैसला करने की कुव्वत मौजूद है, जो फैसला करने की सलाहियत रखता है, जो फैसला करने का अहल है। ऐसा कोई शख्स फैसला करेगा तब ना उसका फैसला आप मानेंगे। चलता फिरता कोई भी आदमी फैसला करे तो क्या आप उसका फैसला मान लेंगे फौरी तौर पर? ये तो हर कोई कहेगा कि नहीं, नहीं मानेगा। तो इस शाहिदुन की तनवीन में ये बात पाई जाती है, ये मीनिंग पाई जाती है, ये माना पाया जाता है। एक इंतहाई अजीम शख्स ने जो फैसले की कुव्वत रखता था, जो फैसला करने की समझ रखता था, ऐसे शख्स ने गवाही दी।
यानी फैसला किया, जिसका माना यहाँ पर क्या है, फैसला किया। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा क्या है, मिन अहलिहा कहा। अहलिहा, हा की दमीर कहाँ लौट रही है, हा प्रोनाउन है ये दमीर लौट रही है उसी औरत की तरफ, उसी औरत की तरफ। यानी फैसला शख्स भी कहां से आ रहा है, उसके रिश्तेदारों में से है। तो अब यहां पर क्या होता है, खास तरीके से इसको क्यों बयान किया गया है, ताकि कोई भी शख्स ये न समझे कि इन्होंने, फैसला करने वाले ने किसी तरह की जानिबदारी से काम लिया। इन्होंने जो है औरत के खिलाफ फैसला दिया इसलिए कि इनको औरत की ताल्लुक से कोई दुश्मनी थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनका कोई गहरा ताल्लुक था, उसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में फैसला सुना दिया। नहीं नहीं, ये तो खुद उसी औरत के शौहर, उसी औरत के रिश्तेदार थे, उसी से इसका जो है, उनको औरत के जो है खानदान से इसका ताल्लुक था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं। वैसे भी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहीं दूर के रहने वाले, कनान के रहने वाले, और वहां से उनको ला करके जो है मिस्र के बाजार में बेचा गया था और अजीज मिस्र में खरीदा था, वहां के तो रहने वाले नहीं। और यहाँ इनके रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों में से तो कोई था ही नहीं। तो औरत के ये भी था कि जिसे कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए कोई फैसला करने वाला, वैसा भी नहीं। अगर न्यूट्रल होता है, जो दोनों में से किसी की तरफ भी तो न उसकी कोई रिश्तेदारी है, न कोई मिलना जुलना है, वो लोग मानते हैं उसको। लेकिन यहाँ तो वो मामला भी नहीं, बल्कि उसी औरत के रिश्तेदारों में से, उसी के खानदान का एक समझ बूझ वाला आदमी, एक फैसले की कुव्वत रखने वाला आदमी, एक समझदार आदमी, उसने ये फैसला किया। फैसला क्या किया, फैसला अब आगे है। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। फैसला करने वाला कौन है। अब यहाँ एक पॉइंट और आपके सामने पेश करूं, ये इसका अल्फाज के लिहाज से कोई पॉइंट नहीं है, आम तरीके से लोग ये पेश करते रहते हैं, हो सकता है आपने भी कहीं सुना हो, लेकिन वो गलत है। उसके लिए मैं ये बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये तंबीह करना चाहता हूँ कि जो लोगों में चीज मशहूर हो गई है, एक छोटे से बच्चे ने ये गवाही दी, ये छोटे से बच्चे ने गवाही देने वाली जो बात कही जाती है, ये किसी भी रिवायत से साबित नहीं, कहीं भी किसी सही रिवायत में इसका जिक्र नहीं है। और छोटे से बच्चे को कोई बच्चा गवाही दे तो कौन मानने वाला है। और ऐसा बच्चा जो अभी बोलता ना हो, अभी दूध पीता बच्चा है, जिसकी जबान अभी नहीं खुली है, वो अगर गवाही देता है तो वो एक जो है उसकी अपनी अहमियत होती है। लेकिन सही बुखारी में, सही हदीसों में जिन छोटे बच्चों के बात करने का जिक्र उनमें ये नहीं जिक्र किया गया है। बस के बारे में जिक्र है, और सही बुखारी में एक ही हदीस में 3 जो है शीरखार बच्चों का, दूध पीते बच्चों का बात करने का जिक्र है, लेकिन उन 3 में ये नहीं है, ये शामिल नहीं है उसमें। और यह फैसले करने की बात है, तो फैसला क्या कोई छोटा बच्चा करेगा, दूध पीता बच्चा करेगा? नहीं, यहाँ तो फैसला करने की बात थी, और खास तरीके से उस औरत के खानदान के एक आदमी ने फैसला किया, ये उसको खुसूसियत के साथ यहाँ जिक्र किया गया है। तो इन सब को सामने रखते हुए ये बात जो लोगों में मशहूर हो गई है कि छोटे बच्चे ने गवाही दी, ये साबित नहीं है, याद रखिएगा। अब उसके बाद फैसला क्या हुआ है, अब उस फैसले को नोट कीजिए। खालिस ये फैसला किसके ऊपर आधारित है, ये फैसले की बेस क्या है, उस वक्त की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसी को सामने रख करके ये फैसला किया गया है। और ये खालिस मंतिकी फैसला है जो किसी भी अक्ल वाले को समझ में आ सकता है, और कोई भी अक्ल रखने वाला यही कहेगा कि हाँ बात तो यही हो। क्या कहा है देखिए, अब फैसला क्या है, इनकान कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन,
फसदक़त वहुव मिनल काज़िबीन। अगर ये यूसुफ की कमीज, अगर इनकी कमीज सामने से फाड़ी गई है, अगर कमीज सामने से फाड़ी गई है तो औरत की बात सही है, और ये मर्द जिसके बारे में ये इल्जाम है कि उसने औरत के साथ बदकारी करना चाहा, ये मर्द झूठों में से है, झूठों में से है। वहुवा मिनल काज़िबीन, ये मर्द झूठों में से है। वइन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुर, और अगर इसकी कमीज पीछे से फाड़ी गई है, खुद्दा जो है पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो फाड़ने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये ऐसे लंबाई में जो है फाड़ा जाता है, तभी ये लफ्ज अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये पीछे से कमीज फाड़ी गई, कमीज देख लीजिए, अगर पीछे से फटी है, फकज़बत, तो ये औरत झूठी है और वो सच्चों में से है। मर्द जो है वो सच्चों में से है, सच बोलने वालों में से है। ये बात थी। अब ये मंतकी चीज है। मैंने अभी आपसे कहा कि ये खालिस किसका मामला है? अक्ल का मामला है, हालात के लिहाज से फैसला करने का मामला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त कमीज पहने हुए नहीं थे, वो कमीज तो फटी और जो है वो निकल भी चुकी थी। अब वो कमीज को देखना था, ये वही आगे बात आएगी कि अब कमीज को देखना है। उनके जिस्म के ऊपर ही कमीज रहती उस वक्त, तब तो वो मालूम ही हो जाता कि पीछे से फटी है कि आगे से फटी है। कमीज को देखने की बात क्यों कही जाती है? तो वो जो पीछे से खींचा है कमीज जो है, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचाने के लिए कमीज निकाल करके भागना जो है, ये जो होता है कि जो है किसी तरह से भी औरत से पीछा छूटे और उसके हाथ में कमीज आ चुकी है तो कमीज छोड़ करके ही भागना जो है, वो जो मामला था, तो ये चीज असल में ये हुई थी। तो कमीज उस वक्त जिस्म पे नहीं थी उनके। अब ये आगे और पीछे वाली बात का क्या है? अगर कमीज आगे से फटी है तब औरत सच्ची है और ये मर्द झूठों में से है। क्यों ऐसा होगा? आगे से फटी है तो क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आगे खुद ये मर्द बढ़ रहा है और औरत उसको धक्का दे रही है, अपने से दूर कर रही है, और इसमें जो है कमीज का सामने का हिस्सा ही हाथ में आएगा, पीछे का तो नहीं आएगा। जब मर्द आगे बढ़ेगा तो कमीज का, हाँ, सामने का हिस्सा ही हाथ में आएगा, औरत के पीछे का नहीं आएगा। अगर गलती मर्द की तरफ से है, मर्द आगे बढ़ रहा है, तो ये कैफियत होगी। अगर औरत आगे बढ़ रही है और मर्द भाग रहा है, औरत उसे मजबूर कर रही है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ बदकारी करनी है, लेकिन मर्द भाग रहा है, तो औरत जब उसे पकड़ेगी, भागने से रोकेगी, तो कमीज का पीछे का हिस्सा ना हाथ में आएगा, सामने का हिस्सा नहीं आएगा। बात बिल्कुल मंतकी है, बात बिल्कुल समझ में आने वाली है। इसीलिए ये भी एक बहुत मशहूर जुमला है, आपने बारहा सुना होगा ये मशहूर जुमला, यानी फेमस कि वो हालात को समझ सके, इतनी उसके पास सलाहियत होनी चाहिए मेरे हाथ। ये अहम चीज है ये। अब देखिए यहाँ पर कमीज का मामला आ गया। अब वो कमीज का फट जाना, ये खुद अपने आप में औरत के खिलाफ ये चीज जो है दलील बन गई, ये प्रूफ बन गया औरत के खिलाफ, यही प्रूफ बन गया। और यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि गलती उसी की है, और यूसुफ ये भाग रहे थे, पीछे से वही पकड़ रही थी।
اور جس سے بھی آپ یہ بات کہیں گے وہ فوراً مان لینا کہ ہاں بات تو یہی ہوگی کہ جب بھاگ رہا ہو کوئی آدمی آپ پیچھے سے پکڑیں گے تب جب پیچھے کی قمیص پھٹے گی. اور اگر ایسا ہو کہ وہ آدمی آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ اس کو بھگا رہے ہو, دھکا دے رہے ہو, اپنی طرف سے دور کر رہے ہو, تو سامنے کی قمیص کا حصہ آئے گا. یہی چیز ہو, بالکل جو ہے بڑی کلیئر بات تھی یہ. اور قمیص کا پھٹ جانا یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوا. میں نے آپ سے ابھی ایک بات کہی تھی کہ مجرم جرم کی جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسا چھوڑ جاتا ہے جس سے اس کے جرم کا پتہ چل جاتا ہے اور مجرم کی شناخت بھی ہو جاتی ہے. یہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے میرے بھائی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ایسا جو ہے وہاں پر اس موقع پر ایسا کچھ نہ کچھ جو ہے مقدر کر دیتا ہے, ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے مجرم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, تحقیق کرنے کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے, کاش لوگ وہ عقل استعمال کریں. دو آدمی آپ کے پاس شکایت لے کر کے آتے ہیں, دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں شکایت کرتا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی عقل استعمال کریں تو یا کہ آپ پہچان جائیں گے کہ دونوں میں سے غلط ہو سن کر کے. لیکن اس کے لیے کیا ہے, اپنی سوچ کو, اپنی جو ہے سمجھ بوجھ کو استعمال میں لانا ہوتا ہے. بہت ضروری ہے یہ چیز جو ہے. تو یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی قمیص کا پھٹ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کیا گیا تاکہ یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو سکے اور عورت کی غلطی ظاہر ہو سکے. اس سے جو ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا تھا, جیسا کہ یہاں پر یہ بات جو ہے کہی گئی ہے. اگر عربک لینگویج کے لحاظ سے آپ اس جو ہے اس آیت پہ غور کریں گے تو دیکھیے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. فصدقت وهو من الكاذبین. دونوں جگہوں پہ کیا ہے, عورت کے بارے میں ہی کہا گیا ہے. ایک جگہ پر صدقت کہا گیا اور ایک جگہ پر کذبت کہا گیا. یہ دونوں جو ہے فعل عربی زبان کے لحاظ سے یہ مؤنث کے لیے ہی ہے. واحد مؤنث غائب کہتے ہیں اس کو, یعنی تھرڈ پرسن کے لیے جو فیمیل ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. فصدقت فکذبت فصدقت فکذبت, ایسے ہی استعمال کیا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک جگہ پر مرد کے لیے اور ایک جگہ پر عورت کے لیے, ویسا استعمال نہیں کیا گیا. یعنی میں آپ کو عربی میں کہہ کے سناتا ہوں, یہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت, یہاں عورت کے لیے بات آ گئی کہ عورت سچی ہے, وہو من الکاذبین, اور وہ یعنی وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے. اب اس کے بعد نیچے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, تو اب یہاں کیا ہونا چاہیے, فصدق. اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو مرد سچا ہے, فصدق یہ آنا چاہیے, فصدق وہی من الکاذبات یا من الکاذبین, دونوں کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور عورت یہ جھوٹوں میں سے ہے, لیکن دونوں جگہ پر یہ جو فعل استعمال کیا گیا عورت ہی کے لیے استعمال کیا گیا. صدقت بھی کہا گیا اور کذبت بھی کہا گیا, دونوں عورت کے لیے استعمال کیا. اور مرد کے لیے کاذبین اور صادقین کی بات کہی گئی. یہ تو کاذبین اور صادقین کی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں سجع ہوتی ہے عربی زبان کے لحاظ سے, یعنی ہر آیت کو نون سے ختم ہونا یا نون سے ملتا جلتا مخرج میں جو حرف ہو, جیسے میم ہے تو میم یا نون, ان سے جو ہے آیت کو ختم ہونا چاہیے, ان پر آیت کو ختم ہونا چاہیے, تو وہ بالکل جو ہے
उसके लिहाज से ये बात बनती है मिनल कादिबीन मिन अस्सादिकीन। ये बात जो है कादिबीन और सादिकीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो बात समझ में आती है, वरना कादिबीन सादिकीन भी ना कहा जाए अरबी में यहाँ पर तो ये औरत सच्ची है मर्द झूठा है, वह हुआ कादिबुन कहा जाए तो काफी है, लेकिन मिनल कादिबीन मिन अस्सादिकीन कहा। तो ये बात भी नोट करने की होती है, क्या है कि दोनों जगह पर जो वर्ब है सदाकत कज़बत, दोनों जगह पर औरत ही के लिए इस्तेमाल हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए यानी मर्द के लिए जो अरबी में सेगा आता है, फेल का सेगा बनता है, वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी भी अपनी जगह पर अहमियत है और इसके लिए इसको जानने के लिए आपको एक हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते जब हम इसी सूरह की तफसीर और तज़किया नफ्स का ये दर्स आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होंगे तो आपके सामने इसकी वजाहत करेंगे। आज का दर्स हम यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।